Hello beautiful paper out there. Welcome back to my YouTube channel. Today in this video we'll be going to see the important LAQs and SAQs for the final examination. Okay. So guys, if you are new on my channel, please subscribe my channel and share my channel with your friends. This is for microbiology students, first semester. Okay. Here we'll be going to see about the general microbiology 101 paper, and in this you can see the LAQs which they can ask is definitely from microscopy, or else they will ask you the LAQ from method of sterilization. This, okay, these are the two LAQs they can ask you from this unit. From this two LAQs you can attempt one, you have to attempt one, right? So these are the two LAQs which will come for sure. And for SAQs, what can I say here is SAQs they can ask you about the genetics of sporulation. This will come as SAQ. And bacterial endospore structure, you need to describe about that. Prokaryotic cell, eukaryotic cells, they will tell you to draw that structure and you need to describe a little bit. That will come into an SAQ. Okay, about the staining method they can ask you in an SAQ. Okay, ecology, about ecology they will ask you a SAQ. So these are the SAQ which will be going to ask in the paper from this unit. And if we talk about the unit 2, here the LAQs which they will ask you are about the growth phase directly, growth phase and importance of each growth phase they will ask you. Okay, so this is the important question. And one more important question they can ask about synchronous culture, this LAQ. I'm giving 3 LAQs from this about the bacterial taxonomy and classification of this, that they will ask about the numerical Weyer's manual and general properties of bacterial groups. So this is the another LAQ. So 3 LAQs I have given from this topic, and from this LAQs itself the short answers also covered. Okay, they will ask you the short answer from this only, and formation of protoplasm, SAQ, that's it. So this much things going to ask in this unit. Okay, and unit 3, if we talk about the unit 3, this simple thing where I am going, my thinking is this they will ask you in the LAQ. One LAQ from this, another is microbial nutrition, metabolism of this, another two LAQs I have said it. Okay, so in liquid nitrogen preservation we preserve pollen grains, right? So these are the very things we have learned in the degree. Preservation and maintenance of microbial culture we have learned in the degree. So these are going to be come, and we can able to write it with our own as well, right? So these are the two LAQs which will be going to ask in your examination. And for SAQ they can ask about the auxotropes, prototropes, media, autotrophic media they can ask you. So these are the SAQ they can ask you. What is a synthetic mineral media, they will ask you as an SAQ. Okay, so now we will be going to see the paper 2, that is virology. In paper 2, the LAQ they can ask in this paper is viral classification. Okay, viral classification LAQ 1 definitely. ICTV, virospores, and bacteriophage is very much important. Okay, don't leave that for sure. And what else they can ask you? Virus, viroids and prions, these are important. Okay, and the significance of emerging viruses they will ask you this as an SAQ, LAQ. Okay, that's it. Now here in the unit 2, if we see the unit 2, you just preparing for this TMV, HIV, SARS-CoV-2, HBV, okay, and this reverse transcribing of DNA and RNA. These are the very much important. They can ask you in the SAQ, as well as if they ask you the LAQ, you can able to write this. Which LAQ? They will ask you the LAQ about the structure and characteristic, replication strategies of bacteriophage, T2 and lambda phage, and they will ask you structure and categories of this is HIV का पूछेगा, important बहुत जो है, HBV important है, और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग ऑफ DNA RNA है, SARS-CoV-2 ये बहुत ज़्यादा important है. तो इन सब के बारे से पूछेगा, दैट्स वाई यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दिस. ओके, इनमें से ये LAQ पूछेगा. देखो,
टीटो और लैम्डा का, इट इज़ इन LAQ। एंड वायरल रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक और एक LAQ पूछ लेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 LAQs, और शॉर्ट आंसर जो भी पूछ सकता है इसमें वो दे दिया है। आप नेक्रोसिस के ऊपर एक SAQ पूछ सकता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के ऊपर एक SAQ पूछ सकता है। नेक्रोसिस इज नथिंग बट डेथ ऑफ द सेल, राइट। कैसे होगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए LAQ जो पूछेगा यूनिट 3 में, दे कैन आस्क यू LAQ अबाउट द वायरल वेक्टर्स यूज फॉर क्लोरिंग सीक्वेंसेस M3 रेट्रोवायरस एंड दिस प्रोमोटर्स कैम V35S promoter and its application, एक LAQ हो चुका है यहाँ पर। और अनदर LAQ दे कैन आस्क अबाउट द वायरल इंटरफेरेंस एंड इंटरफ्रॉन्स के ऊपर एक SAQ पूछ सकता है, या फिर ट्यूमर वायरस के ऊपर पूछ सकता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस, दैट्स इट एंड नॉट मोर देन दैट। एंड नाउ विल बी गोइंग टू सी दी पेपर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी में और इसके टेक्निक्स में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखना है, या तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अच्छे से परफेक्टली प्रिपेयर हो जाओ, या फिर आप क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये 2 में से एक, ये 2 LAQs पूछेगा, इन 2 में से आपको एक LAQ लिखना होता है। तो आप एक चीज़ में प्रिपेयर हो जाओ बेस्ट, किसमें, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में, या फिर ये NMR ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या बोलते हैं ORCD स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ों पे प्रिपेयर हो जाओ। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज पर प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। एंड SAQs दे कैन आस्क हियर इज सेंटिलेशन काउंटर, ऑटो रेडियोग्राफी एंड स्टेबल आइसोटोप्स एंड दिस डिफ्यूजन cell that's it. These are the SAQs they can ask you. Cell disruption methods can also be asked. So these are the SAQ they can ask, but in LAQs कैलोरीमेट्री आ सकता है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी आ सकता है, एंड या फिर आपको डायरेक्टली पूछ लेगा ये दैट क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स। ये लोग में से ही आपको 2 LAQs आएंगे और इनमें से आपको एक LAQ लिखना होगा, ठीक है। और इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैलोरीमेट्री में बीयर लैम्बर्ट्स लॉ होता है, राइट। बीयर लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है वो SAQ में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। नाउ हियर यूनिट 2 की बात कर लेंगे। तो यूनिट 2 में आपको जो पूछेगा कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन के ऊपर एक SAQ आ जाएगा, और एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक SAQ आ जाएगा। इसके बाद चाई स्क्वायर और पॉपुलेशन एंड वेरिएबल वेरिएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा मिलाकर आपको एक LAQ देगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी आएगा आपको आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए यूनिट 2 के। अब यूनिट 3 में से मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे रही हूँ, आपके जो भी टीचर्स ने जो कुछ भी इंपॉर्टेंट दिया होगा वो इंपॉर्टेंट्स आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट 3 होता है इसमें पूरे प्रोग्राम्स के रिलेटेड है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो आप इसको आपके जो मैम्स ने इंपॉर्टेंट दिया होगा वही इंपॉर्टेंट कंसिडर करें। अब इसके बाद यहाँ पर मैं पेपर 4 की बात करूँगी, माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री की। माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री में से दो LAQs यूनिट 1 में से जो पूछ सकते हैं वो है लिपिड के क्लासिफिकेशन से या फिर कार्बोहाइड्रेट से। आपको 2 LAQs कैसे भी आ जाएंगे, तो आप किसी एक में अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। और लिपिड्स में से प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंपॉर्टेंट है, ये SAQ में पूछ सकता है, ठीक है। मेजर स्टेरॉइड्स और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, स्टेरॉइड्स में क्या क्या आते हैं, इकोसिनॉइड्स एंड ल्यूकोट्रिन्स, ये सारे स्टेरॉइड्स आते हैं। सॉरी मेजर स्टेरॉइड्स, आई एम रियली सॉरी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स में आएंगे, इकोसिनॉइड्स, ल्यूकोट्रिन्स वगैरह। स्टेरॉइड्स में जाएंगे हमारे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन्स के। सो ये भी जो है LAQ में कंसिडर कर सकता है या SAQ में भी कंसिडर कर सकता है। तो आप कोई एक चीज़ पढ़ ले, लिपिड का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्टीरो आइसोमर्स क्या है, एनोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज रखना होगा, क्योंकि SAQ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है, pH के बारे से पूछ सकता है वो SAQ, ठीक है। बफर्स क्या होते हैं ये पूछ सकता है SAQ, जो कि आप बेसिकली आपके एक नॉलेज से लिख सकते हैं कि pH की वैल्यू, pH क्या होता है, pH में ये 3 में अल्कलाइन होता है, एसिड होता है और न्यूट्रल होता है, क्या होता है वो आपको pH के बारे से थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी। इसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर एक SAQ पूछ सकता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का पूछ सकता है। दैट्स इट यूनिट 1 में। थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको हर चीज़ की रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको 2 चीज़ें जो मैं मेन इंपॉर्टेंट LAQ बताऊँगी, ये इंपॉर्टेंट LAQ होगा। आप कैसा भी पढ़ेंगे तो एक पेपर में आएगा, आप पेपर को LAQ लिखे बगैर खाली नहीं दे सकते। तो LAQ के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स कवर होते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए मैं LAQ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तब मैं भी कॉलेज में थी
उस टाइम पर मैं ऐसे ही LAQs पहले पढ़ती थी, देन विल गो फॉर द SAQs, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक एंजाइम्स का है। एंजाइम्स में आपको ये पूछेगा, इसके ऊपर एक LAQ पूछ लेगा, ठीक है। एंड व्हाट एल्स इज़ देयर, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। 3 LAQ बताया मैंने, इसमें से आप 3 में से कोई एक ये तो ज़रूर पढ़े। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, पिरिमिडिन सैल्वेज पाथवे होता है इसमें, प्यूरिन सैल्वेज पाथवे, पिरिमिडिन सैल्वेज पाथवे, और उसमें TPP एंड पाइडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट होता है, जिसको PP कुछ लिखते हैं, राइट। तो ये वाले एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको एंजाइम्स के बारे से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं यूनिट 3 में। तो आप वो पढ़ लोगे तो थोड़े बहुत चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी, आप वो यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम यूनिट 3 में, तो देखिए यूनिट 3 में जो वो क्वेश्चन कर सकता है वो मेनली इसके ऊपर कर सकता है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जिसके साथ वो एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे से पूछ लेगा, व्हाट इज़ एलोस्टेरिक एंजाइम, या फिर वो पूछेगा व्हाट इज़ आइसो एंजाइम्स, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्राइब करना होता है और ये आपका एक LAQ बन जाएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, एंजाइम एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स SAQ होगा, ठीक है। एंड एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइज ऑक्सीडेज रिडक्टेज, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर आपको एक SAQ पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूरे कम्प्लीटली 4 पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, डू कमेंट मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।